वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रामेड अड्डा। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो छोटी छोटी गलतियाँ जो मैंने की थी अपने बैग मेकिंग बिजनेस चालू करते वक्त, और जो मैंने सीखा है वो नॉलेज मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। हेलो, मेरा नाम दीपा जादव है एंड वेलकम टू माय चैनल रामेड पैटर्न्स। 15 साल पहले जब मैंने बैग मेकिंग चालू किया था, इवन आई वॉज अ क्लूलेस बिगनर। कुछ नहीं पता था कहाँ से क्या ख़रीदना है। धीरे धीरे समझने लग गई थी। अराउंड 12 साल पहले मेरी दो लड़कियों से दोस्ती हुई थी जो कि बैग बनाते थे खुद। एक बैंगलोर में थी, एक चेन्नई में थी और मैं पुणे में थी। तो ऑनलाइन हमारी फ्रेंडशिप चालू हुई विद द कॉमन बैकग्राउंड ऑफ बैग मेकिंग। लेकिन धीरे धीरे वो फ्रेंडशिप ग्रो हुई और इतने सालों बाद आज मेरी कोई भी नया प्रोडक्ट बनाती हूँ मैं सबसे पहले उन लोगों को दिखाती हूँ। इनफैक्ट जब मुझे यूट्यूब चैनल चालू करना था तो मैंने ये मेरा आइडिया भी सबसे पहले उनके साथ शेयर किया था, बिकॉज दे कुड रिलेट टू व्हाट आई एम सेइंग। यू नो, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कीप अ फ्रेंडशिप व्हेन यू आर इन द सेम फील्ड एंड राइवल्स इन सम वे, क्योंकि आपकी कस्टमर बेस सेम है, आप प्रोडक्ट सिमिलर बनाते हो। तो वो फ्रेंडशिप इतने साल भी टिकी रही इज़ गॉड्स ब्लेसिंग्स एंड थोड़ी बहुत हम तीनों की समझदारी। लेकिन यस, मैं उनकी फ्रेंडशिप, उनकी फीडबैक, उनका दिया हुआ एडवाइस बहुत वैल्यू करती हूँ। इसीलिए मैं आज के वीडियो के लिए उन दोनों की फीडबैक और उनकी एडवाइस लेके आई हूँ आपके लिए। तो पहले उन दोनों का वीडियो देखेंगे हम, और उसके बाद मैं अपना फीडबैक भी दूंगी जो मैंने अपनी गलतियों से सीखी है, वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो लेट्स फर्स्ट लुक एट सुजन एंड सुधा। Hello, I'm Susan and I have been sewing from 2010. I have been running a bag-breaking brand for 15 years now, and it has been very fulfilling. Here are a few mistakes and advices that I have for people who intend to make and sell the things that they make. One advice that I have would be to follow your curiosity, find the things that spark a little bit of joy and curiosity in the creative process, and you want to explore that because that will surely take you places. And sometimes you might begin by imitating somebody else's work, copying, and I don't condemn it completely, because I do believe that when you start, you do find inspiration elsewhere at work that has already been done. But please don't pass it off as your own. That is just wrong. So yes, take inspiration. We all have to start somewhere, and from there, let your curiosity take you to better places, because there's only one of you, and the way you engage with sewing is going to be very different from somebody else's. And trust yourself to follow that journey. One mistake that I did, and I wish I had corrected earlier on, is to start a mailing list. Having a social media presence is important, but then again, they are not your own. So a mailing list by which you can get people's email addresses, where you can access and give them access to your products, which is away from a third party app, is always beneficial to you. And it's something I wish I did. Please don't scam people by sending them so many updates. Nobody needs to know so much about you, but it is important to have access to your clientele outside of a third-party app. Thank you. Hi, my name is Sudha. I have been sewing since 2010, and I have been running a bag brand for the last 15 years. Seems like forever when I say it like that. This business has taught me a lot of things. I have made a lot of mistakes. So lots of things to cover, but I'll try to keep it as short as possible.
One of the aspects of the business is pop-ups. First, you have to identify the events that you want to be part of. When I was doing events, I was very particular about events that curated only handmakers and not big events that curate the handmakers directly. Handpick the event. Another thing is, as a business, one of your main, you might be very visible in social media, but we cannot eliminate our offline clients as well. So when you are attending events, keep in mind that you may not be able to make a great sale at the very first event that you do. You need to make yourself visible. The clients, the walk-ins need to see you, see your products in person, in real life, touch and feel, see how they are priced, and then probably they'll keep coming back to you after that. Sale may not happen, visibility, connection, putting the best of your work out there in the public is something that you should have as a target for doing exhibitions. Sale is great, sellout is fabulous, but have realistic goal. You cannot always be 100% sellout at all the time. Mistakes, there are plenty. One of the biggest mistakes that I did, and I would highly advise you to try and not commit that, is treat it as a business from day one. Don't treat it as a hobby or as a something which is beyond your. It should not be beyond hobby and below business. It has to be business if that's what you're in it for. And try and divide the labor. Try not doing everything yourself. I think trying to do everything yourself is the most stupid thing I did as a business person. Dividing and conquering is the way to go. I hope these points help you out. See you. तो ये सब था उनका दिया हुआ फीडबैक और एडवाइस, और अभी मैं अपना कुछ छोटी छोटी टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो मैंने अपनी गलतियों से और इतने साल के एक्सपीरियंस से सीखा है। तो सबसे पहले किसी को कॉपी मत कीजिए। देखिए, जब हम बैग बनाना सीखते हैं हमें कोई क्लियर ग्राउंड नहीं होता है कि बनाना क्या है। ओके, तो ऑब्वियसली किसी और को देख के उनका प्रोडक्ट कॉपी करके बना के बेचने की कोशिश करते हैं। मैंने भी वैसे ही चालू किया था, दूसरों का देखती थी, हाँ ये इसका बिक रहा है, मैं भी ट्राई करूँगी। दैट इज़ ओके कुछ हफ्तों तक, लेकिन एट सम पॉइंट यू हैव टू ब्रेक फ्रॉम दैट साइकिल। अगर वो साइकिल में रहोगे तो हमेशा किसी और का देखने की इंतज़ार में रहोगे। ट्राई एंड ट्रेन योर ब्रेन की टू थिंक डिफरेंटली। हर वक्त कहीं ना कहीं तो कोई इंस्पिरेशन ढूंढने की कोशिश करते रहो। ओके, ये मत देखो और कोई और वो प्रोडक्ट बना रहा है तो एक्टिवली ट्राई कीजिए कि आप भी एग्जैक्टली वैसा ना बनाएं। बिकॉज कस्टमर टुडे आर वेरी स्मार्ट, दे नो कि ओरिजिनल किसने बनाया है और ये एक कॉपी है उसकी। तो ट्राई एंड जहाँ तक हो सके गेट आउट ऑफ दैट कॉपिंग मोड एज सुन एज यू कैन। ओके, दैट्स माई फर्स्ट एडवाइस फॉर यू। सेकेंड, प्रैक्टिस अ लॉट। अगर आपको लगता है कि मैं ऐसे ही बना के इमीडिएटली दूसरा प्रोडक्ट बेचने लग जाऊंगी तो वो नहीं होने वाला है। ओके, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू गेट द ट्रस्ट ऑफ कस्टमर्स, स्पेशली ऑनलाइन जहाँ पे इतने फ्रॉड्स होते हैं, कस्टमर्स इजीली विश्वास नहीं करते। सो प्रैक्टिस कीजिए, अपनी प्रोडक्ट की फिनिशिंग ऐसे बनाइए कि इट विल गेट नोटिस्ड। और जो मेरा थंब रूल है, अगर मैं कुछ बनाती हूँ और मुझे 1% भी लगता है कि मैं ये पैसे देके नहीं खरीदूँगी, आई डू नॉट गिव दैट टू द कस्टमर। आई एम ऑलवेज ऑनेस्ट टू माई कस्टमर। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ये हो गया है, गलत हो गया है, कुछ भी छोटी गलती, और मुझे लगता है मैं नहीं खरीदूंगी। अगर मुझे पता रहता है इसमें ये गलती है तो मैं पैसे देके नहीं खरीदती, तो मैं अपने कस्टमर्स को भी नहीं देती हूँ। ओके, सो येस, ऑलवेज बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ
more than your customers. Be honest to yourself, work on your finishing, और वो आएगा सिर्फ प्रैक्टिस से. सो बहुत प्रैक्टिस कीजिए. एक बड़ी सी बेडशीट खरीदिए और उस पर प्रैक्टिस करते रहिए जब तक आपको अच्छी फिनिशिंग नहीं आती. ओके, एंड देन यू कैन स्टार्ट सेलिंग इट टू द कस्टमर्स. थर्ड पॉइंट, ये प्रैक्टिस करना, इसका मतलब ये नहीं कि यू वेट टू पोस्ट टिल द टाइम यू हैव अ गुड प्रोडक्ट. ओके, स्टार्ट पोस्टिंग. मैंने ये मेरी खुद की गलती भी थी. मैं पोस्ट नहीं करती थी कंसिस्टेंटली. बहुत साल तक पोस्ट नहीं करती थी. बनाती थी, फिर रोती थी कि हाँ कोई कुछ बिक नहीं रहा है, कस्टमर नहीं आ रहे. वो मेरी गलती थी क्योंकि मैं पोस्ट ही नहीं करती थी. बिहाइंड द सीन वीडियोस कैप्चर करना सीखिए. मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर सकती हूँ. नहीं, प्रैक्टिस कीजिए. प्रैक्टिस करते करते, जैसे कि मैं पहले बात नहीं कर सकती थी कैमरा के सामने, अभी भी बहुत गलतियाँ करती हूँ. 10-12 रीटेक हर छोटे पीस के लिए करती हूँ, लेकिन प्रैक्टिस करती रहती हूँ. सो कीप पोस्टिंग. कस्टमर आने का इंतज़ार ना करें. ये माइंडसेट से मत पोस्ट कीजिए कि कस्टमर आएंगे इससे. ओके, पोस्ट बिकॉज यू वांट टू मेक अ जर्नल ऑफ योर जर्नी. अभी के लिए कस्टमर्स आ जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन स्टार्ट ऑफ बाय जर्नलिंग योर जर्नी ऑफ आपकी जो भी वॉन्की फिनिश से एक क्रिस्प फिनिश बैग बनाने की. ओके, एंड दैट्स स्टोरीज दैट कस्टमर्स रिलेट टू. सो डू पोस्ट ऑन एनी सोशल मीडिया. डोंट वेट फॉर दैट परफेक्ट बैग टू हैपन. जस्ट कीप पोस्टिंग. ओके, एक और चीज़ जो मैं अभी तक गलत करती हूँ, दैट इज़ आई डोंट प्लान अहेड. जैसे कि दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, अभी रक्षाबंधन आ रहा है, आप अगले रक्षाबंधन के लिए, लेकिन 3 महीने जो भी फेस्टिवल है, अगर रिटर्न गिफ्ट्स की फेस्टिवल आ रही है, जैसे कि गोलू सीज़न या हल्दी कुंकू या ऐसे कोई भी आपकी रीजन की रिटर्न गिफ्ट का जो ऑर्डर का सीज़न आता है, तो 3 महीने प्लान कीजिए. स्टार्ट मेकिंग प्रोडक्ट, स्टार्ट प्रमोटिंग इट. ओके, फिर अराउंड 1.5 महीने पहले, सो प्लान इट वेल. 3 महीने पहले की एडवांस प्लानिंग कीजिए जो भी प्रोडक्ट आप एक सीज़न के लिए बेचना चाहते हैं. कि दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट. आई एम स्टिल नॉट डूइंग इट, और अभी तो और भी डिफ़िकल्ट है क्योंकि मैं फसोल और राममेट दोनों जगल कर रही हूँ, और वो इट्स गेटिंग वेरी डिफिकल्ट. बट प्लीज़ यू डू दिस थिंग. ओके ओके, फ्ली मार्केट्स. फ्ली मार्केट्स जैसे सुधा ने कहा था, डू नॉट गो फॉर प्लेसेस जहाँ पे मास प्रोड्यूस्ड आइटम बेचते हैं. मुझे याद है मैंने पुणे में एक शो किया था बहुत साल पहले, और तभी तो मैं प्राइवेसी पाउच 100 रुपये में बेचती थी. अभी तो मैं 350 में बेचती हूँ, लेकिन तभी 100 रुपये में बेचती थी. और मैं एग्जीबिशन में स्टॉल लगा के खड़ी थी, और हर कोई आ रहा था मुझसे डिस्काउंट मांग रहा था. आई वाज सो annoyed and disappointed कि ऐसे कैसे. और मैं गुस्से में अपना पूरा 1 घंटे में सेटअप ऐसे डूब गए, लेकिन मैंने पूरा सेटअप बंद करके घर आ गई. और उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया था मैं ऐसे कहीं पे भी अपना स्टॉल नहीं लगाऊंगी जहाँ पे मास प्रोड्यूस्ड आइटम बिकते हैं, या जहाँ पे कस्टमर की परचेजिंग पावर उस हिसाब से है. ओके, क्योंकि गो फॉर जहाँ पे हैंडमेड बनते हैं, यू नो, आर्टिस्ट वाले एग्जीबिशंस में जाइए. ये ऐसे एग्जीबिशंस में जाएंगे तो वो लोग सस्ती चीज़ों के लिए ही आते हैं. सो प्लान अकॉर्डिंगली. एक और गलती मैंने ये इतने सालों तक की है, इज़ डू नॉट ट्रीट योर बिजनेस एज अ हॉबी. ओके, जैसे सुधा ने कहा है, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि अपने बिजनेस को एक हॉबी की तरह ना ट्रीट करें. ओके, अपनी फाइनेंसेस एकदम क्लियर रखें. कहाँ से अपनी अगर फैब्रिक ख़रीदा है तो वो नोट डाउन कीजिए. अपने हर एक्सपेंसेस को नोट डाउन कीजिए, हर इनकम को नोट डाउन कीजिए. एंड डू नॉट ट्रीट इट एज अ हॉबी फॉर टू लॉन्ग. Get out of that mode and get into the business mode. और तभी तुम्हारा दिमाग एज अ बिजनेस वुमन चलने लग जाएगा जब तुम इसे बिजनेस की तरह ट्रीट करोगी. ओके, सो कीप दैट इन माइंड.
जैसे सूजन ने बताया था कि डोंट जस्ट रिलाई ऑन कस्टमर्स कमिंग फ्रॉम सोशल मीडिया, मेलिंग लिस्ट तैयार कीजिए. इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू हैव अ मेलिंग लिस्ट, ईमेल एड्रेसेस का कलेक्शन, कि जब भी कुछ नया रिलीज़ आता है आप अपना कैटलॉग्स बनाइए. ओके, वो कैटलॉग्स कस्टमर्स को ईमेल कीजिए, व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, जैसे भी, लेकिन हैव अ कस्टमर बेस. और उनको अपना कैटलॉग शेयर कीजिए, फैब्रिक के ऑप्शंस शेयर कीजिए. ये थोड़ा सा यू हैव टू लर्न. मुझे नहीं आता, मुझे पता नहीं कैसे करना, ना, लर्न थ्रू यूट्यूब, लर्न थ्रू ChatGPT, लेकिन ये सीखिए. ओके, अगर आप कंप्लेन करोगे तो दैट्स वेयर यू विल बी स्टक. यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट एंड यू हैव टू लुक एट अदर ऑप्शंस फॉर गेटिंग कस्टमर्स देन सोशल मीडिया. यस, सोशल मीडिया से मिलते हैं कस्टमर्स, लेकिन उसके बाहर भी कस्टमर बेस होते हैं, उनको अप्रोच करने की कोशिश कीजिए. तो जैसे सूजन ने बताया है, बी क्यूरियस, हमेशा सोचते रहिए कि हाँ, मैं ये कॉम्बिनेशन ट्राई करूँगी तो कैसे लगेगा, मैं ये फैब्रिक्स अलग अलग टेक्सचर ट्राई करूँगी तो कैसे होगा. ओके, मैं हमेशा इतनी क्यूरियस मोड में रहती हूँ, तो अगर मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मेरी नज़र सबसे पहले उस औरत के बैग पे जाती है, और मैंने कहीं एक औरत देख लिया तो उसकी बैग पे नज़र जाती हूँ. तो मैं अगर मेरे हस्बैंड के साथ रहती हूँ तो वो मुझे हमेशा चिढ़ाते हैं कि दीपा, डोंट स्टेयर एट दैट बैग सो मच, कि वो औरत को लगेगा तो उसकी बैग लेके भागने वाली है. तो हाँ, बट आई लव टू सी, कुछ नया दिखता है ना तो मुझे लगता है ओ, मुझे ये ट्राई करना है. ओके, सो ऑलवेज बी क्यूरियस कि ये चीज़ कैसे बनता होगा, मैं इसे कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ. ओके, अब दूसरे क्या बनाते हैं, डोंट बॉदर, अपना प्रोडक्ट को कैसे इम्प्रूव करना है उस पर ध्यान करो. Okay, it's very important to do that. Okay, so these are all the feedbacks, mistakes, advices that I could share with you, with my friends. तो आप ज़रूर इस पर थोड़ी थोड़ी तो ध्यान दीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए कि आप वो गलतियाँ ना करें, या उतनी लेवल तक वो गलती ना करें. ओके, गलतियाँ तो होने ही वाली है, डोंट थिंक कि मुझसे कोई गलती नहीं होगी. गलती होगी, लेकिन जहाँ तक हो सके उसे कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए. ये रामेड अड्डा का अभी के लिए लास्ट एपिसोड होगा. अगले हफ्ते से मैं संडे को एक नया सीरीज़ लेके आ रही हूँ, बट रामेड अड्डा फॉर as of now, this is the last episode. So I will see you next Tuesday on another tutorial. Bye bye.